OTS in VAT and new e-invoice provisions. We will be enlightened on these topics by today's guest speaker, CA Piyush Bansal. Members, we will try our best to conduct 1 or 2 study circle meetings every month. Members are requested to suggest us the topics they want to be covered in these study circle meetings in advance so that we can make necessary arrangements accordingly. Members, we have formed 3 committees. Newsletter committee will be led by CA Riyaj, along with CA Hemant Bhardwaj, CA Sanjeev Bhandari, CA Mohit Sahi ji, CA Hitesh Goyal ji, CA Rohit Gupta ji, CA Vilash Ninja ji, and CA Venus Arora ji. We have formed Government Licensing Committee with past President CA Vikas Goyal ji, immediate past President CA Sameer Gupta, and CA Sunny Nurullah ji. Another media committee is also formed with CA Rajiv Sharma, CA Suresh Chitkaraj, and CA Vikas Sharma ji. The team itself has recently attended the meeting of Grievous Redressal Committee held at GST Bhavan, Rishinagar, Ludhiana. We have raised and discussed many issues faced by member. Shri Vikas Kumar, Honorable Principal Commissioner, CGST Ludhiana, has assured for more such interactive session in future also. So I will not take much of the time at it. It is going to be an extensive learning session. So I request Sai Gupta ji to carry on with the proceedings. Thank you, members. Now I would like to invite our executive member CA Sahil Sharma ji for formal introduction of our guest speaker CA Piyush Bansal ji. Sahil ji, please provide the introduction. थैंक यू साहिल जी। वैसे तो पीयूष बांसल जी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही इज वेरी फेमस पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आई हैव नो वर्ड्स। कुछ वर्ड होते हैं जो मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पाते। ये ऐसे पर्सन है। ही इज वेरी गुड पर्सन। फॉर फॉर्मली वेलकम, इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ श्री पीयूष बांसल जी, ही इज बीकॉम FCA. He also did diploma in information system audit. He is approved faculty for GST and national trainer as well as author of JCI. साहिल शर्मा जी, आप ठीक है, बोलिए। Am I audible? हाँ जी, Am I audible? Am I audible? Please continue. Interruption. He is also partner Subhash Piyush and associate chartered accountant having office at Fagwada as well as in Moga. He is a regular speaker of income tax and GST. He is a resource. He is also a resource person of DAV College for Girls, Gadhankar, Guru Nanak College. Fagwada, various GST seminars having and conducted more than 160 GST seminars for various chartered accountant as well as for traders, manufacturers, service sectors and accountants. If we talk more than 165 training program on effective public speaking. He is you will surprise his soft skills, skill training. He is conduct various seminar on happy married life also. If we talk other social activities, he is past chairman of Jalandhar branch. He is past president of Fagwada Chartered Accountant Association, national treasurer of JCI in 2016. Also vice president of youth in All India Youth Agrawal Sammelan. ये तो बहुत कुछ अभी बहुत कुछ है, but I will not take much time of your. I would like to hand over the mic to Mr. Sahil Gupta. Now I would like to transfer this mic to Mr. Piyush ji to deliberate on the topics OTS and e-invoicing provision in the GST law. So Piyush ji, please take over this ceremony from this ad. Thank you very much, Sahil ji.
प्रेसिडेंट ऑफ ITCA ये विकास गुप्ता जी, सेक्रेटरी साहिल जी, जॉइंट सेक्रेटरी साहिल जी, and many other I can see Ludhiana branch executives also. हमारे भाई साहब सुभाष जी is there, Avneet is there, I can see Chitkara साहब is there, very renowned personality, Sameer भाई is there, और राजीव भैया इज ऑल्सो देयर। मैंने जब पहली बार मुझे कहा कि ITCA में आना, मैंने कहा भाई आपके पास साहिल है, राजीव है, मुझे कहाँ पे बुलाते हो यार, उनके क्वेश्चन के आंसर मैं दे नहीं पाऊंगा। वो कहते जी उन दोनों को चुप करा देंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज हमने टॉपिक लिया है OTS। इससे पहले भी मेरा सेशन ITC में हुआ था, समीर भैया ने करवाया था, दैट वाज OTS 1। नाउ वी आर ऑन OTS 2। विकास जी कहते हैं जी काइंडली डेलिब्रेट ऑन हैप्पी मैरिड लाइफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन GST। सर हैप्पी मैरिड लाइफ का सिर्फ एक ही असूल है, जो बीवी ने कहा वो सत्वचन है। जो बीवी ने कह दिया उसको कहना है जी जनाब, बस दिस इज द वन गोल्डन रूल फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। इसके अलावा कुछ और नहीं है। बाकी उसको लटका जितना मर्जी लो, लेकिन गोल्डन रूल यही है। उसके लिए फुल डे का सेमिनार करेंगे। फुल डे फिजिकल सेमिनार सर, दैट वुड बी बेटर। चलिए हम वापस आते हैं OTS पे। OTS सेकंड, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। इज इट विजिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल? सर विजिबल है जी सर, हमारा विजिबल सर है। देखिए वेबिनार पे ना 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो क्वेश्चन का आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला, एम आई ऑडिबल? सेकंड, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका आंसर बहुत जरूरी है। बाकी चाहे सारे सेशन में कोई आंसर ना आए। ओके, नाउ वी आर ऑन टू वन टाइम सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज, OTS 2। OTS 2 में ये प्रेजेंटेशन में तो खैर डिटेल बहुत ज्यादा डली है, इतनी डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ इसको। 2014-15 से 2017-18 तक के जितने भी केसेस डिसाइड हुए हैं बिफोर 30 नवंबर 2021, जो भी असेसमेंट हो गई 14-15 से लेकर 17-18 तक की। 17-18 का फर्स्ट क्वार्टर ये GST में उसके बाद तो GST हो गया, वैट में सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर कवर था। तो फर्स्ट क्वार्टर तक की जितनी भी असेसमेंट हो गई 30 नवंबर तक, ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस OTS 2। क्योंकि 17 दिसंबर 21 से ये स्कीम आई है, नोटिफाई हुई है। और सबसे पहले एक चीज है कि 30 नवंबर 21 से पहले ऑर्डर हुआ हो। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें 70% की वेवर है, 70% वेवर, मतलब हमें 30% पे करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी जो एप्लीकेशन है OTS 1 में, वी विल डिस्कस दोस फॉर्म्स आल्सो, उसके साथ हमें 20% टैक्स लायबिलिटी पेड का प्रूफ लगाना पड़ेगा। और वो 20% टैक्स लायबिलिटी, दैट मींस 70% वेवर के बाद जो नेट बचा उसका 20%। सपोजिंगली मेरी टैक्स लायबिलिटी जो असेस की गई थी वो 1 लाख थी, अब उसमें से मैंने कुछ C फॉर्म और दे दिए आज, 20,000 की टैक्स लायबिलिटी और कम हो गई, 80,000 रह गई। 80,000 में से 70% रिमूव कर देना है मुझे, तो 30% बचा 24,000। 24,000 का 20% यानी कि 4800 रुपए मुझे 31 मार्च 22 से पहले पहले पे करने। क्लियर है सब पॉइंट? 70% वेवर के बाद जो टैक्स लायबिलिटी मेरी बची उसका 20% मुझे 31 मार्च से पहले पहले पे करना है। सर खुराना जी, मैं स्लाइड से नहीं चल रहा, मैं जस्ट ब्रीफ दे रहा हूं। अदरवाइज जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी 70% रिड्यूस करने के बाद उसका 20% मुझे पे करना है 31 मार्च से पहले पहले। और बैलेंस जो 80% बच गया
वो मुझे पे करना है 31 मार्च 2023 से पहले। मेरा फाइनल ऑर्डर जब मैंने पूरी लायबिलिटी पे कर दी उसके बाद आएगा। जब भी मैंने पे कर दिया तब मेरा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। ये एक ब्रीफ स्कीम है। कौन कौन एलिजिबल है, हम दोबारा चलेंगे। 2014-15 से 17-18 फर्स्ट क्वार्टर तक की जिनकी असेसमेंट 30 नवंबर से पहले होगी, मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी है 30 अप्रैल से पहले 30 अप्रैल 2022। मुझे कितना पे करना है? एडिशनल डिमांड जितनी बनी है, दैट डिमांड इंक्लूड योर टैक्स, योर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, एंड आफ्टर रिड्यूसिंग एनी सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी फॉर्म नाउ। आज मैंने जो स्टैट्यूटरी फॉर्म सबमिट कर दिया उसकी वजह से भी मेरी जो टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, वो रिड्यूस करके जो बैलेंस बचा उसका मुझे 70% वेवर मिलेगा। एडिशनल डिमांड का 70% मैंने वेपर ले लिया, 30% का 20% मुझे आगे पे करना है बिफोर 31 मार्च 2022। मेरी एप्लीकेशन होगी OTS 1 में, फॉर्म है OTS 1, और उसके साथ मुझे 20% टैक्स पेमेंट का प्रूफ लगाना है। OTS 1 we will just see, is it visible? OTS 1 नजर आ रहा है सर? नहीं सर। नहीं अभी नहीं सर, अभी नहीं आया। क्या अभी विजिबल है सर? नहीं, OTS 1 नहीं विजुअल हो रहा है। OTS 1 नहीं विजिबल हो रहा? नहीं सर। सर उसको प्लीज स्क्रीन शेयरिंग में लेके करना पड़ेगा आपको। सर दोबारा स्क्रीन शेयर करना है। हाँ जी सर। नाउ इट इज ओके यस सर। सर अब आ गया। सर। ये OTS 1 है जो हमें सबमिट करना है। ये 30 अप्रैल 2022 तक हम सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ हमें 20% पेमेंट, जो पेमेंट 31 मार्च से पहले हो चुकी होनी चाहिए, उसका प्रूफ चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दी थी 20% पेमेंट की, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेरी टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेनल्टी 1 लाख रुपए डिसाइड की गई थी। प्लीज इसको OTS जो हमारी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 1 थी उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। उसमें लाख तक की टैक्स लायबिलिटी अलग थी, 5 लाख तक की अलग थी, 5 लाख से ऊपर एप्लीकेबल नहीं थी वो। ये हमारी OTS 2 है, मतलब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2 है। इसमें कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि 14-15 से लेकर 17-18 तक का जिसका भी केस है वो अपना 70% वेवर ले सकता है। पहली स्कीम में 90% वेवर भी थी और इंटरेस्ट और पेनल्टी की अलग वेवर थी। सब्जेक्ट टू कि आपकी कितनी डिमांड है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधी सीधी 70% वेवर है। तो मैं अपनी एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ। मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी 1 लाख। मैंने आज कोई C फॉर्म या H फॉर्म या वट एवर मेरी स्टैट्यूटरी फॉर्म सबमिट कर दी है, जिसकी वजह से वो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होके इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पेनल्टी रिड्यूस होके 80,000 रह गई। अब उस 80,000 की 70% मुझे वेवर मिलनी है, दैट मींस 56,000 वेवर मिलेगी। 24,000 इज बैलेंस टैक्स। 24,000 का 20% मुझे 31 मार्च 22 से पहले पहले देना है, यानी कि आने वाले 14-15 दिन में मुझे वो पे करना है। 24,000 का 20% यानी कि 4800 मुझे 31 मार्च से पहले पे करना है, और वो पेमेंट का प्रूफ मुझे इस फॉर्म OTS 1 के साथ लगाना है। ये OTS फॉर्म 1 हम देखते हैं सर। फॉर्म का नाम, फॉर्म का वैट नंबर, किस असेसमेंट ईयर का है। इट मेक्स क्लियर कि हर असेसमेंट ईयर के लिए हमें ये सेपरेट फॉर्म फिल करना है। ऑन अ लाइटर साइड, मैं जितने फॉर्म फिल करूंगा उतने की फीस लूंगा। तो जितने सालों के केस है मैं उतने फॉर्म फिल करूंगा। हर साल का अलग फॉर्म जाना है। अगर मेरी कोई अपील फाइल हुई है, अगर मैंने ऑलरेडी कोई अपील फाइल कर रखी है, आपको याद होगा कि अपील में हम 25% टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं, 20 जितनी भी टैक्स लायबिलिटी पे करके अपील स्टार्ट होती है। तो जितनी मैं लायबिलिटी पे कर चुका हूं उसका मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। मेरी 70% वेवर, फॉर एग्जांपल मेरी दोबारा एग्जांपल पे आते हैं। 1 लाख की डिमांड थी, 80,000 रह गई। 80,000 में से ऑलरेडी
मैं 30,000 दे चुका हूं सपोजिंगली अपील फाइल करते टाइम, आई हैव ऑलरेडी पेड 30,000, तो वो 30,000 पे हो गया। अब मुझे पे करना था 24,000 टोटल, आई हैव ऑलरेडी पेड 30,000, तो मुझे 6,000 का कोई रिफंड नहीं मिलेगा, मेरी फुल पेमेंट ट्रीट करनी जाएगी। इट इज वेरी क्लियर इन दिस ओटीएस कि आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी उसका कोई रिफंड नहीं है। मुझे स्टेटस ऑफ अपील देना, एपलेट केसेस में भी ओटीएस में जा सकता हूं विद द कंडीशन कि मुझे वहां पे बताना पड़ेगा कि अगर मेरी ये ओटीएस एक्सेप्ट होती है तो मैं अपील विड्रॉ कर लूंगा, आई विल नॉट कंटेस्ट अपील फर्दर, और मेरा फाइनल ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर जो मुझे ओटीएस का मिलेगा वो अपील विड्रॉल का प्रूफ देने के बाद मिलेगा। मुझे स्टेटस ऑफ अपील बताना है, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग देनी है। देखिए, एडिशनल डिमांड, टैक्स कितना, इंटरेस्ट कितना, पेनल्टी कितनी, कौन कौन सी लगी है, 2% पर मंथ वाली लगी है, 200% लगी है, दोनों लगी है या कोई और भी लगी है। एंड देन रिमार्क्स लाइक लिटिगेशन स्टेटस एक्सेट्रा, कोई भी मेरा वहां पे लिटिगेशन है या कुछ भी है वो मुझे मेंशन करना है। लेस 70% वेवर, दिस एडिशनल डिमांड इज आफ्टर रिड्यूसिंग एनी स्टैट्यूटरी फॉर्म व्हिच आई एम सबमिटिंग नाउ। तो मुझे पहले एओ को अप्रोच करना पड़ेगा कि ये रहा आपका असेसमेंट ऑर्डर, ये मैं और दे रहा हूं आपको, नाउ माय एडिशनल डिमांड इज रिड्यूस्ड टू दिस मच अमाउंट। तो वो एडिशनल डिमांड में यहाँ पे मेंशन करके उसके अगेंस्ट 70% वेवर लूंगा। द बैलेंस इज माय डिटरमिन्ड अमाउंट एंड आई एम पेइंग 20% ऑफ डिटरमिन्ड अमाउंट, आई एम रिपीटिंग अगेन, बिफोर 31 मार्च 2022। वो मुझे यहाँ पे पे करनी है, और उसकी पेमेंट डिटेल, चालान की डिटेल, ट्रेजरी रिसीट नंबर जो भी है वो मुझे यहाँ पे सबमिट करना है। असेसमेंट ईयर की कॉपी मुझे साथ लगानी है, असेसमेंट ऑर्डर की, अपील की डिटेल, पार्ट बी में अपील की पूरी डिटेल, और जो फॉर्म मैं अभी सबमिट कर रहा हूं, अगर मैंने एओ को नहीं सबमिट किया, मैं यहाँ पे ओटीएस के साथ सबमिट कर रहा हूँ, वो भी मैं सबमिट कर सकता हूँ। उनकी वैल्यू क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिटरमिन होगा। एडिशनल डिमांड लेस माय सबमिशंस जो अब सबमिट कर रहा हूँ ओटीएस फॉर्म के साथ, बैलेंस एडिशनल डिमांड, देन वेवर। अगर तो मैं आज सबमिट कर रहा हूँ ओटीएस के साथ तो यहाँ पे ये डिटेल आएगी, नहीं तो वो पहले पार्ट में ही रह जाएगी। अगेन पेमेंट डिटेल, डिक्लेरेशन एज एप्लीकेबल टू पार्ट ए और बी, ये सारी डिक्लेरेशन है कि मैं अपील विड्रॉ कर लूंगा, मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। मैंने वन टाइम सेटलमेंट ली है, मैं 30% टैक्स पे करने के लिए तैयार हूं, और बैलेंस 80% मैं 31 मार्च 2022 से पहले पहले पे करूंगा। जब मैं वो पे करूंगा उसका प्रूफ भी मैं डिपार्टमेंट को सबमिट करूंगा, वो सबमिशन के बाद मेरा फाइनल आएगा, फाइनल ओटीएस ऑर्डर मेरा उसके बाद आना है। ओटीएस 1 में मैंने एप्लीकेशन दी, ओटीएस 2 में डिपार्टमेंट की एक्नॉलेजमेंट आएगी मेरे पास ओटीएस 2 में। देखिए दिस इज ओटीएस 2, ये वो एक्नॉलेजमेंट दे देंगे कि मेरी ओटीएस 1 की एप्लीकेशन आ गई, नथिंग एल्स। इसमें सिर्फ ये है कि मेरी एप्लीकेशन आ गई। दिस एक्नॉलेजमेंट डजंट मीन कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, इट इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट कि मैंने एप्लीकेशन दे दी है, ऑन टाइम दे दी है। देन we are on to our presentation back. देखिए ओटीएस 2 में मेरी एक्नॉलेजमेंट आ गई। नाउ दिस इज, अगर प्रोविजनल सेटलमेंट का ऑर्डर मेरे पास आएगा ओटीएस 3 में, दिस विल बी कि मैंने 20% पेमेंट कर दी है सेल्फ असेस करके अपनी, तो वो मुझे ओटीएस 3 में प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे देंगे। दिस इज अगेन ऑर्डर बाय एओ, और अगर कोई उसमें कमी है then they will provide me deficiency notice in OTS 4। तो मेरे पास OTS 4 में डेफिशिएंसी आएगी, जो ये सारा कुछ होने के बाद
जब मैंने सारा टैक्स पे कर दिया, पहले से 80% ही 31 मार्च तक पे कर दिया, तब मेरे पास फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर आ जाएगा OTS 5 में। नाउ वी विल सी दीज ऑर्डर्स। दिस इज OTS 3 प्रोविजनल सेटलमेंट ऑर्डर। इसमें वो दे रहे हैं कि एडिशनल डिमांड इतनी थी आपकी, ये आपका वेवर 70%, दिस इज योर डिटरमिन्ड अमाउंट Sir. लेस अमाउंट। यस सर। हाँ सर, आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ रीशेयर करनी पैनी स्क्रीन। ओके, OTS 3 नहीं विजिबल हो रहा सर? नहीं सर। अब विजिबल है जी? यस सर, विजिबल है। तो OTS 3 में मुझे प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया, सेटलमेंट ऑर्डर आ गया, एडिशनल डिमांड लेस 70%, डिटरमिन्ड अमाउंट लेस अमाउंट पेड, बैलेंस टू बी पेड बाय मी। 20% मुझे पहले पे कर देना था, अगर कोई मैंने और भी पे किया हुआ तो वो सारा एडजस्ट करके बैलेंस अमाउंट आ गई। ये मेरा OTS 3 है। अगर CST का है तो वो अलग आ जाएगा, VAT का अलग आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे मेरा OTS 1 में पार्ट 1 और पार्ट A और पार्ट B था, VAT और CST, अगेन हेयर पार्ट A एंड पार्ट B, VAT एंड CST। क्योंकि VAT में तो कोई मेरे स्टैट्यूटरी फॉर्म जाते नहीं है, वो तो सारे CST वाले ही हैं, तो वो स्टैट्यूटरी फॉर्म्स की एडजस्टमेंट यहाँ पे आती है। ये आ गया मेरा OTS 3। अब इसके बाद डेफिशिएंसी नोटिस और फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर। मैं OTS 4 शेयर करता हूँ। ये This is my OTS 3 deficiency. का कोई टाइम फ्रेम है, कब तक मिल रहा है ये? सर इसका टाइम फ्रेम ऐसा कोई नहीं दिया हुआ जी इन्होंने, लेकिन ये जरूर है कि आपको फाइनल असेसमेंट, फाइनल सेटलमेंट जब आपने पूरी डिमांड पे कर दी उसके बाद 30 अप्रैल से बाद आपकी कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी, और 31 मार्च से पहले पहले आपका 20% टैक्स पे होना चाहिए। ये है जी बस। ये मेरा डेफिशिएंसी मेमो है। इसमें डिस्क्रिपेंसी मेंशन कर दी कि उन्होंने, आपने जो एप्लीकेशन दी है उसमें ये इश्यूज है, या तो फिजिकली आ जाइए या ये रिमूव कर दीजिए। अगर आप ये रिमूव नहीं करते तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। दिस इज नॉर्मल प्रोसीजर, वी ऑल नो दैट। अगर कोई डेफिशिएंसी है देन दे विल प्रोवाइड अस दिस डेफिशिएंसी मेमो एंड देन फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर। दिस इज योर फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर। इसमें भी फिर वैट के अंदर आपकी टोटल अमाउंट पेड टिल अगर कोई बैलेंस रह गया। ये मैं बता दूं कि इसमें बैलेंस रहेगा नहीं, क्योंकि विदाउट बैलेंस, विदाउट क्लियरेंस ऑफ बैलेंस वो हमें ये फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर ही नहीं देंगे। ये आना ही सारी डिमांड पे होने के बाद है। ये नहीं है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करता रहूं, इंस्टॉलमेंट 1 एंड इंस्टॉलमेंट 2। सिर्फ ये है कि 31 मार्च से पहले वाली इंस्टॉलमेंट और 31 मार्च से बाद वाली इंस्टॉलमेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मंथली मंथली करके चला दूं। वन शॉट पेमेंट, टोटल टैक्स इंस्टॉलमेंट 2। टाइम पीरियड मेरे पास है पूरा 1 साल। ये मेरा फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर आएगा, साइंड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। आज की डेट में डाल दिए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन पे डाले हुए हैं, वही वाला ऐसा आ गया। ये मेरा फाइनल सेटलमेंट ऑर्डर आने वाला है। आई एम कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन। हमें अपनी डेफिशिएंसी जो रिमूव करनी है उसके लिए 7 दिन का टाइम है। वो हमारे डेफिशिएंसी नोट में भी क्लियर था कि विद इन 7 डेज यू हैव टू क्लियर दिस डेफिशिएंसी। वो रिसीट ऑफ दिस डेफिशिएंसी नोट हमें 7 दिन में ये क्लियर करनी है। इस पे अगर हमारी कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो। सर चैट बॉक्स में कई क्वेरीज हैं हमारी। सर काफी आई हुई है चैट बॉक्स में। तो जैसे हमारे मेंबर्स की आई है सर ऊपर से चलता हूं मैं।
Dealer who was not covered under OTS 1, can they be covered under this OTS? सर 2014-15 से लेके 17-18 तक की जो असेसमेंट्स हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं। तो उस ब्रैकेट में जो भी आ रहा है वो इसमें फॉल करता है। कैन डीलर हैविंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ऑन 30th June 2017 अवेल द बेनिफिट ऑफ ओटीएस? देखिए जो मेरा आईटीसी का बेनिफिट बैलेंस था वो तो ट्रांजिशनल प्रोविजन थे जीएसटी में, वो तो मैंने उधर ले लिए। अगर मैंने उधर नहीं लिए हुए, यहीं पे आप कह रहे हैं कि मेरे पास आईटीसी है और मैं आईटीसी के साथ इसको एडजस्ट कर दूं, आई डाउट दैट थिंग। मेरे हिसाब से वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आई एम नॉट वेरी क्लियर, इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करता। और सर अगर किसी ने रिफंड लेना हो, जैसे अगर हम कहें सी फॉर्म एच फॉर्म है, परसेंटेज इंटरेस्ट रेट सप्लाई की है, तो उस केस में 90% सी फॉर्म या एच फॉर्म को आ गए, 10% के ऊपर डिमांड क्रिएट हुई है, ठीक है, तो उसके पास उसने अभी रिफंड नहीं किया बैंक का, तो क्या ऑप्शन तो ओडीएस में है ही नहीं सर। नहीं ओडीएस में नहीं है। अगर वो पर्सन ने रिफंड की एप्लीकेशन भी लगा रखी है और उसकी असेसमेंट हुई, असेसमेंट में मतलब अगर 75% और जो कंडीशन में थी हमारी कि हम बैंक का रिफंड ले सकते हैं बिफोर सी फॉर्म, कंप्लीट सी फॉर्म, ठीक है, तो उसने उसका रिफंड लिया है या उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है रिफंड की, तो इन द मीनवाइल उसकी असेसमेंट हो जाती है और वो उस असेसमेंट में जितनी लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट ओटीएस में जाता है, क्या उसके रिफंड के ऊपर इशू आएगा? सर आना नहीं चाहिए, क्योंकि रिफंड की सेपरेट एप्लीकेशन हो चुकी है। लेकिन एक इशू है, ये ओटीएस स्कीम में एक चीज क्लियर है कि ये वन टाइम सेटलमेंट, अब आप सारे डिस्प्यूट की सेटलमेंट कर रहे हैं। तो अगर उसको बाद में मेरी जो रिफंड रिफंड एप्लीकेशन है दैट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ इशू विद द डिपार्टमेंट कि ये पैसे मुझे आपसे लेने हैं। ऑन द वन हैंड डिपार्टमेंट इज सेइंग कि मैंने इतने पैसे आपसे लेने हैं, असेसमेंट ऑर्डर में यही आ गया ना सर। जी सर, तो वो दोनों में मैं दोनों चीजों का बेनिफिट डिपार्टमेंट कैसे दे देगा सर मुझे, कि मैं इधर से भी 70% फेवर ले लूं, उधर से भी रिफंड ले लूं? तो जिस पर्सन ने रिफंड लेना है उसको ओटीएस में जाना नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कैन डीलर for example demand is 20 lakh, dealer is in appeal and has deposited 5 lakh, 20% of total demand, can he settle his case by paying balance 20%? अरे सर 20 लाख की अगर डिमांड है, 20 लाख की डिमांड का मुझे 70% वेवर हो गया। अगर मैं ओटीएस में जा रहा हूं तो मेरा 70% वेवर हो गया। 30% अब 30%, 20 लाख का 30% बता 6 लाख, ठीक है ना जी। 6 लाख में से 5 लाख में ऑलरेडी पे कर चुका हूं, बैलेंस 1 लाख दूंगा बस। यू आर वेरी राइट, मैं बैलेंस 1 लाख ही दूंगा। मैं ओटीएस में जा सकता हूं, मैंने 5 लाख पहले पे कर दिया, अब 1 लाख और दे दूंगा, मेरा ओटीएस ओके, मुझे और कुछ इशू में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये उल्टा होता कि मेरी अमाउंट डिपॉजिटेड ज्यादा थी, सपोजिंगली मैं 7 लाख दे चुका हूं, अब मेरी लायबिलिटी बनती है टोटल 6 लाख की, आई हैव ऑलरेडी पेड 7 लाख, तो मैं 7 लाख के साथ सेटलमेंट में जाऊंगा, मुझे 1 लाख वापस नहीं आएगा। कैन वी पे एंटायर डिमांड आफ्टर ओटीएस इन वन गो? यस यू कैन पे, लेकिन 31 मार्च से पहले 20% पे होना जरूरी है, चाहे आप 31 मार्च से पहले सारा पे कर दीजिए। व्हाट इज टू बी मेंशन्ड इन एनी अदर कॉलम? सर ये ओटीएस 1 की बात कर रहे हैं आप? 1 की बात कर रहे हैं, ओटीएस 1 में एनी अदर कॉलम वाला। ओटीएस 1 दोबारा शेयर करता हूं। जी सर, हाँ जी सर। penalty and एनी any अदर other. सर, अगर कोई और पेनल्टी मेरी लगी हुई है, मेरे ऊपर अगर किसी तरह की और पेनल्टी लगाई हुई है, किसी भी तरह की पेनल्टी, जो जनरल पेनल्टी भी लगी या कोई भी पेनल्टी लगी, वो उसकी भी पेपर है मेरे पास, तो ये पेनल्टी का एनी अदर है सर। क्लियर सर? ठीक है सर। सर एक क्वेरी रही सुनील गुप्ता जी की। मैं आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। Can dealer having balance of ITC as on 30th set avail the benefit of OTC? For example, additional demand after? सर ये मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, इसमें कंफ्यूजन ही है। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमें, मेरी मतलब पर्सनल ओपिनियन है
कि हमें इस पे कंटेस्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट इसकी पेमेंट कैश में मांगेगा। ओटीएस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, पे करना लिखा हुआ है, और पे करने का लिटरल मीनिंग अगर मैं लेके चलूंगा वो तो कैश में आता है। सर अगर कहीं कुछ नहीं लिखा होगा तो अपने बेनिफिट में तो ले ही सकते हैं ना। मैं कह रहा हूँ सर इस पे कंटेस्ट करना चाहिए, ये मेरी पहली वर्डिंग। सर एक छोटी क्वेरी और है, जैसे अगर किसी की वैट के असेसमेंट के अंदर एरर आ जाए, मतलब उसने जो ऑफिसर है जुडिशियल ऑफिसर, उसने जब असेसमेंट की तो उसमें उसने कुछ गलती कर दी, किसी ने कोई चालान की कॉपी दे रखी थी, ही मिस्ड टू मेंशन दैट चालान, और उसकी डिमांड भी उसने क्रिएट कर दी। तो इन दैट केस अगर वो जो चालान की कॉपी है वो पहले भी दे चुका है, उसके बाद कॉपी दोबारा नहीं है और वो फाइल में भी नहीं लगी, तो इन दैट केस वो किस प्रोसीजर से उसको मीन दोबारा ओटीएस में या वैट के असेसमेंट को रेक्टिफाई करवाए पहले, या ओटीएस करेगा? सर देखिए ना, बड़ा वैसे तो ये आपको असेसमेंट में करवाना चाहिए, लेकिन मैं ओटीएस में चलता हूँ, एक वेग सी चीज लेता हूँ मैं कि मेरा डिमांड हो गई 2 लाख रुपए और मैंने 50,000 पे कर रखा था, जो कि वहां पे एडजस्ट नहीं हुआ। अब जब मैं सेटलमेंट में जा रहा हूँ, मेरा ओटीएस 1 कह रहा है एडिशनल डिमांड, दैट एडिशनल डिमांड इज 2 लाख। डिमांड ऑलरेडी पेड में कह रहा हूँ 50,000। ये कहीं नहीं है कि मुझे 31 मार्च से पहले कब, चाहे ये 17 दिसंबर के बाद की ओटीएस है, मैं ये कहूंगा कि मुझे एओ के साथ उस टाइम पे भी ये लेना चाहिए कि ये मैं 50,000 पे कर चुका हूं, अब आप एडिशनल डिमांड मेरी 1.5 लाख लेके चलो, उसके ऊपर मेरी वेवर आके उसके ऊपर एडजस्टमेंट हो। अदरवाइज मुझे असेसमेंट पहले रेक्टिफाई करवानी चाहिए, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो क्या रेक्टिफाइड असेसमेंट जो है वो हमारी बैकडेट में मानी जाएगी, मतलब पुरानी असेसमेंट के शूज में आ जाएगी? बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी, क्योंकि 30 नवंबर से पहले मेरी असेसमेंट मेन असेसमेंट हो चुकी है। तो रेक्टिफाइड असेसमेंट विल आल्सो बी टर्म्ड एज रियल असेसमेंट, और रियल असेसमेंट ही आ उसी जाएगी। की रेक्टिफिकेशन है। एनी अदर तो क्वेरी सर विद रिगार्ड चलिए टू चलिए ओटीएस? आगे चलिए सर। ठीक है सर, आगे सर। ओटीएस तो इतनी हुई है सर, ओटीएस तो कवर हो गई। इसमें कोई और सजेशन आप देना चाहते हो सर, आप बताइए। सर मैं तो ये कहूंगा कि बेनिफिट वाली स्कीम है, जितना बेनिफिट ले सकते हैं ले ले। इवन इफ रेक्टिफिकेशन तो हुआ जी, ये अगर रेक्टिफिकेशन असेसमेंट 30/11 के बाद भी हुई है तो भी वो प्रिंसिपल असेसमेंट की ही रेक्टिफिकेशन है, तो हम प्रिंसिपल असेसमेंट के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, उसमें वेवर लेके। मेंबर्स यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप रेज member हैंड को भी है कर कोई? सकते हो। हमारी अगर कोई और है तो हम इस पे करते हैं, तो नहीं तो फिर अदरवाइज दूसरा वी विल मूव ऑन टू ई इनवॉइसिंग। Shall we start e-invoicing? हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए। रजनी राज किसी और मेंबर की क्वेरी है तो आप स्टार्ट करें सर आज का। ओके सर, मैं e-invoicing स्टार्ट कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, स्क्रीन विजिबल है? जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। सर हम सबका ना एक इशू रहता है, जैसे मेरे साथ भी था, जब ये 500 करोड़ पे ई इनवॉइसिंग शुरू हुई, मुझे किसी ने कहा कि ये ई इनवॉइसिंग क्या है, मैं कहा भाई कोई क्लाइंट नहीं है कि 500 करोड़ के ऊपर का आपने नहीं पड़ी। अब एकदम से ये 500 से आ गई 100, 100 से आ गई 50, 50 से आ गई 20। अब 20 करोड़ में हम सब कॉल करने शुरू कर गए, काफी लोग।
तो ये रेलेवेंट हो गई ई इनवॉइसिंग जीएसटी। ई इनवॉइसिंग इज नथिंग, मतलब अगर मैं कहूँ कि कोई नई चीज डाल दी तो ये है कि इसको आपको इनवॉइस को ऑनलाइन डिटेल देनी है, जहां से ये ऑटोमेटिकली सब तरफ आपकी डिस्प्ले होती जाएगी, जीएसटीआर 1 में चली जाएगी और ई वे बिल भी वहीं से बन जाएगा, सारा कुछ ई इनवॉइस पोर्टल से हो जाएगा। लेकिन एक चीज हो गई, एक हमारा लॉगिन है gst.gov.in पे, एक हमारा लॉगिन है ई वे बिल के पोर्टल पे, अब ये एक तीसरा लॉगिन आ गया ई इनवॉइसिंग के पोर्टल। ई इनवॉइसिंग का पोर्टल ई इनवॉइस 1 एक नया पोर्टल डाल दिया है। ये एक ठीक चीज कर दी कि ई इनवॉइसिंग के पोर्टल से ही, और आपको लिंक दे दिया ई वे बिल का, वहीं से बिल बन जाएगा ई वे बिल भी। लेकिन अदरवाइज ये एक नया पोर्टल आ गया, हमारे 3 यूजर आईडी पासवर्ड हो गए। तो ई इनवॉइसिंग में सबसे पहले किसको एप्लीकेबल है? फॉर B2B सप्लाई और फॉर एक्सपोर्ट। B2C के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, B2B के लिए है। किसके लिए एप्लीकेबल है? B2B एंड एक्सपोर्ट। कौन? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्सपेयर। कौन नोटिफाइड है? ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस with an aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onward greater than 20 crore। कब से? 1/4/22। मतलब 17-18 से लेके आज तक मेरे किसी भी साल में टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हो गई है, चाहे तब लिमिट 500 करोड़ वाली एप्लीकेबल थी, चाहे 100 वाली एप्लीकेबल थी, चाहे 50 वाली एप्लीकेबल थी। अगर मेरे पिछले किसी साल में भी 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर रह चुकी है, जरूरी नहीं कि मेरी 21-22 की टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर हो, 20-21 की, 19-20 की, 18-19 की, 17-18 की, किसी भी साल की टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, वी ऑल नो एग्रीगेट टर्नओवर, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अगर 20 करोड़ से ऊपर रह गई है तो मुझे ई इनवॉइसिंग 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल। जिनकी रह चुकी है, डिपार्टमेंट ने बाय डिफॉल्ट उनकी लॉगिन रजिस्टर कर दिए हैं, हो चुके हैं। टर्नओवर 20 करोड़ यहाँ पे मैंने रेड में किया हुआ है, इंक्लूड एग्जाम सप्लाई। तो एग्जाम सप्लाई भी याद रखनी है कि वो भी बीच में ही है। जो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर की हमेशा से डेफिनेशन है वही है, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वही वाली डेफिनेशन यूज होनी है। जीएसटी की जो डेफिनेशन है वही लगनी है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन। जो हमारी डिस्टिंक्ट पर्सन वाली ट्रांजेक्शन है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ऑल इंडिया बेसिस पे मेरी टर्नओवर अगर एक पैन पे 20 करोड़ से ऊपर है तो ये एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं। एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11 or 6 of IGST and include non taxable supply। तो यहाँ पे रेड आ गया नॉन टैक्सेबल सप्लाई। पहले आया एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें आया एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूडेड है। बाकी तो हमें पता ही है, मेन इशू क्या है कि एग्जाम सप्लाई भी है। एग्जाम सप्लाई में क्या है, जो निल है या एग्जाम है, और जो नॉन टैक्सेबल है। और नॉन टैक्सेबल क्या है? विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर आईजीएसटी। मतलब पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब पेट्रोल पंप। टैक्सेबल टर्नओवर तो लुब्रिकेंट की कितनी है वो थोड़ी सी है, लेकिन टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर हो गई तो मुझे रजिस्टर करना है। सर अगर ओनली नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हो तो उस केस में कैसे उनको भी करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर अगर मेरी 20 करोड़ से ऊपर है, एक्सक्लूसिवली अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई है या नॉन कुछ टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्पशन नहीं है। दी सर। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है फॉर B2B टर्नओवर। अब पेट्रोल पंप का केस में ले रहा हूँ, लुब्रिकेंट सेल अगर B2B है तो ही इनवॉइसिंग होगी। पेट्रोल डीजल तो नॉर्मली मेरे B2C में ही जा रहे हैं, वो तो क्योंकि जीएसटी में है ही नहीं।
तो अगर लुब्रिकेंट सेल मेरी B2C है तो मेरा वो वहां पे ई इनवॉइसिंग लगेगी नहीं, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर मेरी लुब्रिकेंट सेल B2B है तो उस पर मुझे ई इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। ई इनवॉइस ई वे बिल से डिफरेंट कहाँ पे है, वहां पे 50,000 की लिमिट है कि 50,000 से ज्यादा का बिल है तो ही मुझे ई वे बिल करना है। यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मेरी टर्नओवर अगर 20 करोड़ से ऊपर है, मैंने किसी को 100 रुपए का भी B2B में माल बेच रहा हूँ तो मुझे ई इनवॉइस करनी पड़ेगी। मजेदार काम होता है सर ये ई इनवॉइस। कुछ दिन पहले मैं बेस्ट प्राइस में शॉपिंग कर रहा था, तो मेरा जीएसटी नंबर पे परचेजिंग थी, B2B परचेज थी उनके हिसाब से, चाहे मुझे उसका आईटीसी मिलना था नहीं मिलना था, घर का राशन पानी भी होगा बीच में। लेकिन वो कहता सर वेट कर लो 5 मिनट। मैंने कहा भाई क्यों? कहता जी पोर्टल नहीं चल रहा, ई इनवॉइसिंग इशू नहीं हो रही। वो एक कोड सा आना है, उसको तो पता नहीं था ई इनवॉइसिंग क्या है। कहता जी एक कोड सा लगना है बिल के ऊपर, वो जब तक नहीं लगेगा पोर्टल से मैं नहीं आपको बिल दे सकता, तब तक आप वेट कर लो। जो बिना जीएसटी वाले हैं उनको बिलिंग हो रही है आराम से। आधा घंटा वेट करके वहां से माल निकला। और अब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में देख लो कि अगर पोर्टल नहीं चल रहा होगा और मेरी ई इनवॉइसिंग है तो मेरी सप्लाई उतनी देर तक रुकी रहेगी जो ई वे बिल का सिस्टम भी हो गया था। अब वही सेम सिस्टम यहाँ पे ई इनवॉइस में आ गया। तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडेड है। तो एक क्वेरी थी सुभाष जी की कि पेट्रोल पंप के केस में, तो मैंने स्पेसिफिकली वो पेट्रोल पंप कवर किया है कि पेट्रोल पंप के केस में ई इनवॉइसिंग लगेगी। सुमेश चितकारा जी का क्वेश्चन है, कैन वी हैव सेपरेट सीरीज ऑफ इनवॉइसेस फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स? सर अगर ई इनवॉइस की बात करें तो हमारी जो सीरीज है उसी के साथ चलना है। आप जितनी सीरीज चलानी चाहे चला सकते हैं, कोई इशू नहीं। इनवॉइस में एक स्पेशल कोड ही जनरेट होना है और क्यूआर कोड आना है। इसमें तो सर सर इसमें इसमें जो हाँ जी, आपको जो जो हमारा वन बाय वन सर, पहले विकास जी। सर जो हमारा अपना सीरीज है जो एक सिस्टम से जनरेट होता है, तो रेलिवेंट कौन सा इनवॉइस रहता है? जो सिस्टम से जनरेट हो गया इनवॉइस रेलिवेंट है या हमारा कंप्यूटर सिस्टम वाला भी इनवॉइस रेलिवेंट है? सर ई इनवॉइस में बेसिकली एक कोड लग गया ऊपर आपकी ही सिस्टम से। आपने सपोज आप टैली यूज कर रहे हैं, आपने टैली से इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। आज की डेट में आपने टैली से इनवॉइस या कोई भी आप ईआरपी सिस्टम यूज कर रहे हैं उससे इनवॉइस जनरेट कर रहे थे रूटीन में, आप वो और ई वे बिल लगा के पार्टी को दे रहे थे। अब क्या होगा, वो इनवॉइस की डिटेल आपकी ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे जेसन फाइल अपलोड हो जाएगी, वहां से क्यूआर कोड लग के आपका प्रिंट निकल आएगा, वो आप इनवॉइस आप अपने व्हीकल के साथ भेजेंगे। वो तो कंप्यूटर इनवॉइस जनरेटेड इनवॉइस की वैलिडिटी फिर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड? सर जो सिस्टम जनरेटेड है ना, जो पोर्टल जनरेटेड है, आप जो किया क्यूआर कोड लग के निकलनी है या इनवॉइस रिकॉग्निशन नंबर लगना है एक उससे, वो नंबर लगी वाली इनवॉइस ही अल्टीमेटली आपके सिस्टम से निकलेगी, वही वैलिड है। अब इसमें एक चीज ये है कि अभी तक ये था कि इनवॉइस पे साइन होने मस्ट है। इसके लिए एक इन्होंने प्रोविजो डाला हुआ है रूल 46 में कि अगर साइन नहीं भी है ई इनवॉइस पे तो भी वो चलेगा, उस पर साइन की भी कंपल्सन नहीं है। ई वे बिल तो अलग चीज है सर, ई वे बिल तो रिक्वायर्ड है ही है। ई वे बिल इज स्टिल रिक्वायर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट तो आज भी है। ई इनवॉइस इशू करने के साथ ही आप वहीं से ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इन्होंने ना एक सिस्टम पे यूटिलिटी दे दी है, अगर मेरे सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं है ई इनवॉइसिंग की, तो डिपार्टमेंट ने एक यूटिलिटी दे दी है, एक अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया है जिसमें आप अपना, वो मैं सॉफ्टवेयर आपके साथ डिस्कस करूंगा सारा डिटेल में, जिसमें आप पूरी डिटेल दोगे, अपना प्रोफाइल बनाओगे, प्रोडक्ट डिटेल डालोगे, सप्लायर अपने बायर्स की डिटेल डालोगे, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। वेदर ई इनवॉइस इज रिक्वायर्ड फॉर सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सर आगे चलते हैं, मैं पहले अभी डिस्कस कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है इनवॉइस के टाइम पे या डेबिट नोट पे या क्रेडिट नोट पे, इन तीनों पे ई इनवॉइसिंग लगनी है। अब आपकी गुड्स जो रिटर्न हो रही हैं
आपका माल जो परचेज सेल का रिटर्न हो रहा है, या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट किसी के साथ ही रिटर्न आएगा या बिल के साथ आएगा। अगर चालान पे गुड्स आ रही हैं तो भी उसका डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो जनरेट होगा, तो उसकी भी ई इनवॉइसिंग होनी है। तो क्या सप्लाई जो है, अगर हम जो पहले डेफिनेशन देख रहे थे एग्रीगेट टर्नओवर एग्जाम का नॉन टैक्सेबल सप्लाई की हमने देखी, जो नॉन सप्लाई है वो इसमें इंक्लूड करेंगे हम? सर अगर नॉन जीएसटी सप्लाई पे मैं B2B टर्नओवर कर रहा हूँ, सर नॉन जीएसटी नहीं, नॉन सप्लाई। सर इसमें नॉन जो सेक्शन 7 से ही बाहर होगी, ट्रांजैक्शन मनी हो गई। नॉन सप्लाई तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं आती। ठीक है, नहीं उसको तो ई इनवॉइसिंग के लिए ना एप्लीकेबिलिटी ना नहीं ना लेके सर, आती ना ना। ना ई इनवॉइसिंग तो सप्लाई पे है सर, ठीक है नॉन सप्लाई पे काहे की ई इनवॉइसिंग? जो जीएसटी के अकॉर्डिंगली सप्लाई ही नहीं है, उस पे ई इनवॉइसिंग कहां से होगी सर? देखिए, डॉक्यूमेंट कवर्ड अंडर ई इनवॉइस सिस्टम, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और टैक्स इनवॉइस, इन तीनों के लिए मेरी ई इनवॉइस कवर होगी। एडवांटेजेस क्या है सर? जीएसटी रिटर्न में ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। जीएसटीआर 1 में आपके जितने ई इनवॉइस हो गए वो जीएसटीआर 1 में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सबमिट आपको करनी है जीएसटीआर 1। और क्लैरिफिकेशन भी बहुत बढ़िया आई है इनकी कि आप जीएसटीआर 1 में जो ऑटो पॉपुलेट फिगर्स हैं, जो डिटेल्स हैं, उनको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 फाइल करनी आपकी जिम्मेवारी, हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। हमने ऑटो पॉपुलेट कर दी, वो ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, आप उसको अपने हिसाब से 1 में करेक्ट करके ही फाइल कीजिएगा। लेकिन ये एक एडवांटेज है कि वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और ई वे बिल की ऑटो जनरेशन हो जाएगी। वहां से जो डिटेल आपने ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे डाल दी है, वहीं पे लिंक है कि ई वे बिल जनरेट करो। किन तो किन को ई इसमें सर इनवॉइस? ईवे बिल का क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगी? लेटर ऑन ये फेज आउट हो सकता है ईवे बिल जब ई इनवॉइस हो रहा है? सर मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ई वे बिल इसके बाद होना नहीं चाहिए, हाँ जी, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्योंकि क्या मैंने रहेगी? ई इनवॉइस कर दी तो आपके पास डिटेल आ गई, आपने एक फालतू में कंप्लायंस और रखा हुआ है कि एक ई वे बिल भी दो, तो उसकी एज सच कोई रिक्वायरमेंट लगती, मतलब मेरी समझ में तो नहीं आई कि कोई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो फेज आउट हो सकता है। किन किन को एग्जम्पशन है ई इनवॉइसिंग से? एसईजेड यूनिट, जो यूनिट एसईजेड में है, अगर मैं एसईजेड यूनिट को कोई सप्लाई दे रहा हूं तो मुझे एग्जम्पशन नहीं है। जो एसईजेड यूनिट है वो अगर कोई एग्जम्पशन देगा तो उसको वो अगर कोई सप्लाई देगा तो उसको ई इनवॉइसिंग से एग्जम्पशन है। इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीडीए, ट्रांसपोर्टर्स तो हमेशा ही बाहर रहते हैं इनसे। वो तो मतलब हम कहते हैं कि सरकार के जवाई हैं, दामाद हैं, उनको तो कोई लाइबिलिटी आनी नहीं चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली बाहर निकाल दिए गए। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बाहर है। एंड पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, मतलब थिएटर की टिकट पे ही इनवॉइस नहीं है अगर B2B भी है तो भी। तो ये कैटेगरीज हैं जो ई इनवॉइस से बाहर हैं। इसके अलावा हर चीज पे ई इनवॉइस लगी। सर मोहित जोई जी कह रहे हैं कि टाइम लिमिट फॉर ई इनवॉइस, जो रूल 46 है वो कहता है इनवॉइस इशू होनी है आपकी, गुड्स शुड बी अकम्पनीड बाय इनवॉइस, और अगर ई इनवॉइस है तो ई इनवॉइस से कंपनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब टाइम लिमिट एज सच इन्होंने नहीं दी, लेकिन इम्प्लाइड है कि गुड्स अगर रिमूव करनी है आपको प्रिंसेस से तो वो ई इनवॉइस साथ में जानी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप बाद में ई इनवॉइस, एज सच वैसे टाइम लिमिट कोई दी नहीं हुई। ये मेरी ओपिनियन है कि अगर मुझे ई इनवॉइस करनी है और वहां पे मेंशन्ड है कि ई इनवॉइस आपकी गुड्स के साथ ई इनवॉइस होनी चाहिए, तो फिर ये कवर होनी चाहिए। हाँ जी मोहित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वेरी सर। गुड आफ्टरनून।
सर इसमें ऐसा होता है, एक्सपोर्ट के केसेस में जनरली इशू आता है कि जब शिपिंग बिल पे वी वांट की जो वैल्यू है हमारी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट आल्सो, कि हम जनरली तो GSTR 1 उससे मैच करके ही फाइल करते हैं कि जो डाटा हमारा शिपिंग बिल पे आ रहा है, ताकि IGST या LUT के रिफंड में इशू ना आए। तो उसमें अगर हम देयर इज अ गैप ऑफ 5 to 7 days, तो क्या अगर हम बाद में, जनरली हम ऐसे ही कर रहे हैं, वी आर मेकिंग E-invoice वंस वी गेट द शिपिंग बिल वैल्यूज, तो इसमें कोई पैनल प्रोविजन या ऐसा तो कुछ नहीं है? सर ऐसा तो नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा इन्होंने लॉ में कहीं पे नहीं लिखा कि इनवॉइस की कोई डेट है, लेकिन ये कहा है कि इनवॉइस, जो इनवॉइस के क्राइटेरिया रूल 46 में सारे दिए हुए हैं कि ये चीजें इनवॉइस में होनी चाहिए, वहां पे नीचे प्रोविजो है कि इन केस गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है कोई कैटेगरी, वहां पे ई इनवॉइसिंग हो। और मेरे प्रोविजंस ये कहते हैं कि गुड्स अगर मेरी रिमूव हो रहे हैं दैट शुड बी अकम्पनीड बाय एन इनवॉइस, तो जहां पे ई इनवॉइस है दैट मींस दैट शुड बी अकम्पनीड बाय ई इनवॉइस। राइट। अगर रास्ते में कोई इशू आता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है सर। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने आज इनवॉइस बनाया मगर गुड्स जो रिमूव हुआ है वो 1 दिन या 2 दिन बाद हो रहे हैं, तो क्या उसमें भी अगर हम रिमूवल से पहले पहले इनवॉइस बना लेते हैं तो इज दैट वैलिड? यस सर, वेरी मच वैलिड। राइट। बिल की लिमिट है ना टाइम की, इसकी तो टाइम लिमिट है ही नहीं कोई। एक दो बार तो ऐसा कई बार होता है when जब GSTR 1 बनाने के टाइम जब उसकी मैचिंग करते हैं तब कुछ निकल आता है कि किसी इनवॉइस का या डेबिट नोट का क्रेडिट नोट का रह गया इनवॉइस, तो उस टाइम पे भी जनरेट करवा देते हैं। सर तो करवा उसको तो फिर रहे थोड़ा हैं। टाइम लगता है, 1-2 दिन लगते हैं उसको अपडेट होने में। हाँ जी, बट वी यूजुअली ये कि अगर नहीं भी हुआ ये इनवॉइस अपनी रिटर्न में भर के और ये इनवॉइस उस टाइम पे जनरेट कर देते हैं। क्योंकि इन्होंने ये कहा है सर कि आपकी अगर कोई एरर है, सपोज मेरी ई इनवॉइस में कोई मिस्टेक रह गई, तो वो कहाँ पे करेक्ट करनी है, वो भी मुझे GSTR 1 में ही करेक्ट करनी है सर। राइट। वो कह रहे जी हर चीज GSTR 1 में करेक्ट कर दो। ठीक है तो सर, सर एक्सपोर्ट के केस में क्या सजेस्ट कर रहे हो? मोहित जी ने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन उठाया है। तो पहले तो जैसे यही शिपिंग बिल के हिसाब से इनवॉइस बनाते थे, अब गुड्स डिलीवरी के समय भी हमने इनवॉइस निकालना है, तो वो कैसे मैचिंग होगी शिपिंग बिल के साथ? सर क्वांटिटी मैचिंग होगी, आपका रेट फ्लक्चुएशन और जो वैल्यू शिपिंग बिल की है वो इशू तो रहेगा ही रहेगा। देखिए प्रैक्टिकली हम वे आउट अपने अपने निकालते हैं, लीगल पोजीशन तो यही है कि मेरी ई इनवॉइस साथ में जानी चाहिए। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में मैं एक चीज जरूर कह के चलूंगा कि ये चीज हमेशा याद रखिएगा, नेवर एवर टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन शोल्डर ऑफ टैक्स एज अ टैक्स कंसल्टेंट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन एडवोकेट कि हाँ भाई ऐसे कर दे। वी आर देयर टू टेल देम लीगल पोजीशन ओनली, क्योंकि अगर कल को कोई इशू आ गया वो हमारे ऊपर आएगा, आपने गाइड किया था। राइट। तो इट मींस ऐसे केसेस में हम ई इनवॉइस उस दिन का जो रेट है उसके अकॉर्डिंगली कर दें, बट जो हम GSTR 1 फाइल करेंगे उसमें हम करेक्ट वैल्यू फाइल। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डालेंगे ना सर, फिर हम हाँ जी, फिर तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी तो डालेंगे सर। तो वहां पे शिपिंग बिल और इनवॉइस में GSTR 1 में मिसमैच आ जाएगा तो फिर रिफंड में इशू नहीं होगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि दोनों फिगर्स मैच होने पे रिफंड आता है ना, तो बिल्कुल ये आएगा बड़ा सर, बिल्कुल आएगा। ये प्रैक्टिकली मतलब एक बड़ा प्रैक्टिकल इशू है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक और प्रैक्टिकल इशू ले लेते हैं सर। हमारा 2B मैच करके हमें ITC मिलना है, 1 जनवरी से ये प्रोविजन हो गया ना सर। जलंधर ब्रांच में हमने एक इवेंट किया था GST पे, और उसमें डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज भी थी, इंक्लूडिंग DETC जलंधर और इंक्लूडिंग एडिशनल कमिश्नर भी पंजाब के जो हैं खुराना साहब, वो भी आए हुए थे। तो मेरे साथ बैठे थे, मैं उनके साथ डिस्कस कर रहा था ये, मैंने कहा सर एक चीज बताओ, मेरा माल चला अहमदाबाद से, 31 जनवरी को इनवॉइस इशू कर दी उसने, मेरे पास माल पहुंचा 3 फरवरी को। अब मेरी अगले ने तो GSTR 1 डाल दी 31 जनवरी को। अब मुझे ITC मिलना है 2B के अकॉर्डिंगली, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास इनवॉइस भी होनी चाहिए, फिर मेरे पास गुड्स भी रीच हुई होनी चाहिए। वो तो 31 जनवरी को हुई नहीं। अब मैं 31 को ITC लूं या 3 को लूं? 3 को लूंगा तो आप मिसमैच दिखा के मेरे को नोटिस निकाल दोगे। उनके पास भी सिंपल रिप्लाई था, यार प्रैक्टिकल इश्यूज है, इनके अभी कोई सोल्यूशन नहीं। इसके रिगार्डिंग हमने ना एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी की मीटिंग हुई थी। कोई कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम अडॉप्ट किया जाए जिससे हम कह सकें कि ये वाला हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 2B में, ताकि अगले मंथ वो मैच हो जाए।
So बिल्कुल we have given them a representation. Let's see what they do. on सर, ये this. रिप्रेजेंटेशन बहुत जगह से जा चुकी है एंड दे आर कंसिडरिंग दिस। वो जो कंसिडरेशन चल रही है वो अभी चल ही रही है। अगर अब गवर्नमेंट नहीं बन जाएगी तो उम्मीद है कि कुछ फाइनल डिसीजन भी हो जाएगा। ठीक है सर। Sometimes there is difference in GSTR 2B summary and GSTR 2B details. Some invoices appear in 2B details but not added in 2B summary. Please guide. सर 2B की डिटेल के अकॉर्डिंगली क्लेम कीजिए सर उसको, क्योंकि अगर आपको बाद में एक्सप्लेन करना है तो वो 2B आपके काम आएगा। समरी तो उनके सर पोर्टल पे तो इतने इशू हैं, आप 9 फाइल करते हैं। अब हम सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट जाएंगे क्योंकि वो क्या कहते हैं दुखती रग छिड़ गई, तो वो बहुत सी निकल आती हैं। टेबल 8 में जो 2A से ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर आ रही है और जो 2A में फिगर होती है वो नहीं मैच करती सर GSTR 9 में। पता नहीं कहाँ से क्या क्या आता है। तो हमारे पास जो डिटेल है तो उसके अकॉर्डिंगली ही चले, दैट इज ऑलवेज बेटर, ताकि लिटिगेशन के टाइम पे भी हम एक्सप्लेन कर सकें। बैक टू ई इनवॉइस। दो फेज में ई इनवॉइसिंग होगी सर। एक तो हमने अपने सिस्टम से इनवॉइस जनरेट कर ली और सेकंड अपलोड कर दी वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे IRP पे, जो हमारा ई इनवॉइसिंग 1 के नाम पे पोर्टल है। वहां से जो भी इनवॉइस जनरेट होगी वहां से हमारा एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और एक QR कोड जनरेट होगा। वो ई इनवॉइस पे हमारी लग के प्रिंट निकलेगा। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, या तो हमारे सॉफ्टवेयर करेंगे या डिपार्टमेंट ने अपनी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दे दी है, उस पर आप ये सारी डिटेल पंच करके फिर उस पर करोगे, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। QR कोड स्कैन करने पे GSTN ऑफ सप्लायर रेसिपिएंट इनवॉइस नंबर जो हमने दिया था, जिसकी हमने पहले डिस्कशन की थी कि कितनी सीरीज चला सकते हैं, जो इनवॉइस नंबर हमने दिया था वो जितनी भी सीरीज है वो आएगा। डेट ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस वैल्यू, HSN कोड ऑफ मेन आइटम, यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, हैश कोड सॉर्ट होगा, एंड डेट ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइसेस। क्योंकि हम बल्क में भी एक फैसिलिटी है कि इनवॉइसेस उस दिन की इकट्ठी भी कर सकते हैं, बल्क भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, ये हमारा ई इनवॉइस का पोर्टल है, einvoice1.gst.gov.in। इस पे ये देखिए, एक है ये रजिस्ट्रेशन जो मैंने डाउन एरो से किया हुआ है, पोर्टल लॉगिन और ई इनवॉइस एनेबलमेंट। एक है लॉगिन। सबसे पहला स्टेप है जिनकी तो 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गई है वो ऑलरेडी एनेबल्ड है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे हम, एक सिर्फ गुड्स के लिए नहीं है, सर्विसेज इंक्लूडेड है। सर्विसेज के लिए भी ई इनवॉइसेस है। अगर मेरी 20 करोड़ से ऊपर नहीं है और मैं ई इनवॉइसिंग एनेबल करना चाहता हूं, देन आई विल गो टू दैट टैब रजिस्ट्रेशन और मैं ई इनवॉइस एनेबलमेंट पे पहले जाऊंगा। वहां पे मैं अपना GST नंबर डालूंगा, अपनी डिटेल डालूंगा, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उस पर मेरा एक OTP आएगा और मेरी ई इनवॉइस एनेबलमेंट हो जाएगी। उसके बाद मैं पोर्टल लॉगिन पे जाऊंगा। ये जो पोर्टल लॉगिन है ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए है, लेकिन मजेदार चीज है, मैंने 2 दिन पहले कुछ रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की। मेरे फ्यू क्लाइंट्स हैं जो 20 करोड़ से ऊपर आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी वो कहता है कि रजिस्टर्ड है। अब मैंने क्लाइंट्स को कॉल किया, मैंने कहा ये आपने रजिस्टर कैसे किया? कहते हैं सर पता नहीं, हमने नहीं कुछ भी किया, आप बताओ क्या करना है। तो फिर वहां पे ऑप्शन है फॉरगेट यूजर नेम, फॉरगेट पासवर्ड। मैंने फॉरगेट यूजर नेम किया तो बाय डिफॉल्ट एक यूजर नेम जनरेट हुआ है। जैसे पीयूष बंसल की बात करूं तो पीयूष बंसल 1 2 3, दूसरे केस में सुभाष बंसल 4 7 3, कोई ऐसे नंबर जनरेट हुए हैं। दीज आर अवर यूजर नेम। ये हमें फॉरगेट यूजर नेम करना पड़ेगा। फॉरगेट करने पे हमारा जो OTP जनरेट, ये हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो हमारा GST पोर्टल पे हमारे लॉगिन में, ओरिजिनल लॉगिन पे एक मोबाइल नंबर है जो हमारे प्रोफाइल में, उस नंबर पे यूजर नेम चला जाता है। अब वो यूजर नेम डाल के हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, सेम यहीं पे पोर्टल लॉगिन में।
वो फॉरगेट पासवर्ड हमारा ओटीपी आता है और वहां से हम पासवर्ड रीसेट करते हैं, उसके बाद हम लॉगिन कर पाते हैं। ये लॉगिन करने के बाद अगर तो मेरा सॉफ्टवेयर जो ईआरपी सिस्टम मैं यूज कर रहा हूं वो ई इनवॉइसिंग एनेबल्ड है, तो ई इनवॉइसिंग वहां से जनरेट होगी। वो हर सॉफ्टवेयर का अपना प्रोसेस होगा। और अगर वो वहां पे नहीं है तो ये यहाँ पे एक हेल्प है। हेल्प के अंदर टूल्स के अंदर एक इन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है। मैं वो सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर में सारी डिटेल ये प्रोवाइड करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, ये ओपन अप होने में टाइम लेता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की शेयरिंग बंद हो गई है। मैं दोबारा करने लगा हूं सर। दिस इज अवर सॉफ्टवेयर, अब विजिबल है मेरे ख्याल से। इस पे देखिए, ये सबसे पहले सप्लायर प्रोफाइल है। लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे सप्लायर प्रोफाइल है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपनी डिटेल डालनी है। मैं क्लिक करता हूँ ये सप्लायर प्रोफाइल, क्योंकि पहले मुझे मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन बंद हो गया। शेयरिंग विजिबल है। हाँ जी, हाँ जी, शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये सॉफ्टवेयर मेरा जो डिपार्टमेंट की यूटिलिटी है, या सॉफ्टवेयर कह लीजिए ये यूटिलिटी, इस पे सप्लायर प्रोफाइल, प्लीज एंटर मैंडेटरी प्रोफाइल्स इन फील्ड इन प्रोफाइल शीट। ये खुलते हैं सर। सप्लायर का जीएसटीएन, ट्रेड नेम, एड्रेस, डेट, फोन नंबर, लीगल नेम, ये सारी जो बेसिक डिटेल है, ईमेल आईडी वगैरह, ये फिल करके मैं इनको सेव करता हूँ। उसके बाद मेरी है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट मास्टर और प्रोडक्ट मास्टर। ये मुझे सारा फिल करना पड़ेगा, तब मेरी ई इनवॉइस जनरेशन होती है न्यू इनवॉइस पे जाके। मैं कुछ भी कहीं पे भी क्लिक करूंगा, ये पहले कहेगा कि एटलीस्ट मास्टर क्रिएट कीजिए। पहले मास्टर क्रिएट करने से पहले सप्लायर जीएसटीएन डिटेल डालिए। अगर मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में भी ये फैसिलिटी है, बीजी में भी है, कैट प्रो में भी है, और सभी सॉफ्टवेयर में डाल दी होगी, वहीं से ई इनवॉइसिंग जनरेट होगी। अदरवाइज मुझे यहाँ से जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ से जनरेट करने के बाद मेरा जो क्यूआर कोड निकला, वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट क्यूआर कोड और प्रिंट ई इनवॉइस, यहाँ से मेरी इनवॉइस प्रिंट निकले। दिस इज माय बेसिक डिटेल। मुझे ये पहले सारा बनाना पड़ेगा। जब तक मेरा ये मास्टर तैयार नहीं होता, तब तक मेरे कोई भी डिटेल आगे नहीं जाएगी। अभी तक के ई इनवॉइसिंग में कोई क्वेरी सर? बंदों को क्वेरी है, प्लीज लिखा है। हेलो सर, आवाज आई नहीं पूरी। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर रेज ऑफ हैंड करने अगर किसी ज्यादा तो एज यू फील सर, एज यू फील, नो इशू। चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। अगर रेज ऑफ हैंड करना है, रेज ऑफ हैंड कीजिए। बोलनी है बोलिए। लंबी रात की नंबर पे क्वेरी है। मैं एक चीज, अगर सर अगर एक सैंपल हो जाए तो मास्टर क्रिएट करके अभी कर लेते हैं सर। थोड़ा सा मेंबर्स के लिए प्रैक्टिकल हो जाएगा उससे, है ना? चलिए हम सप्लायर प्रोफाइल में चलते हैं सर। चलिए मैं अपना जीएसटी नंबर डालता हूँ।
कुछ भी डिटेल फिल कर रहा हूँ सर मैं अभी। जीएसटी नंबर प्रॉपर डालना जरूरी है क्योंकि अगर अदरवाइज ये उठाएगा नहीं। ये मेरा सप्लायर प्रोफाइल क्रिएट हो गया सर। विकास जी ओटीएस पे क्वेश्चन अभी लेते हैं सर, एक बार ये कर ले पहले कवर। अब मैं जा रहा हूँ रेसिपिएंट मास्टर पे। ये देखिए ऊपर मेरी डिटेल आ रही है। रेसिपिएंट मास्टर, किसी का भी जीएसटीएन नंबर मुझे डालना है। मैंने ये जीएसटीएन नंबर जो भी वैलिड नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी इनवैलिड नंबर रेफरेंस के लिए डाल दिया। विकास जी की क्वेरी ले लेना सर, यस टू गो। हाँ जी विकास जी बोलिए सर, फिर बोलिए। देखिए एंटर वैलिड जीएसटीएन। और आपका जो अल्फाबेट्स है वो कम रह गए, इस आ गया सर। अगर जी विकास गोयल जी को अनम्यूट कर दें। विकास जी को अनम्यूट कर दो सर, पहले उनकी ओटीएस पे क्वेरी ले ले। कर दिया होगा पीयूष सर। पीयूष जी, जी सर। am I audible, sir? यस सर बिल्कुल जी। Sir, a person has a demand only in Punjab, in assessment of Punjab VAT portion, and he don't have any demand on account of short C forms or H CST, forms or any of CST part. ठीक है जी। What is your opinion regarding having a benefit of OTS? सर जितनी भी उसकी डिमांड है, व्हाटएवर इज हिज डिमांड, ही विल गेट 70% वेवर फ्रॉम दैट। सर एक्चुअली ना उसमें जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो ओटीएस है स्कीम के फॉर्म पे लिखा है ओनली दिस स्कीम इज ओनली फॉर दोज केसेस व्हिच आर फॉलिंग अंडर क्राइटेरिया 3 ऑफ सिलेक्शन ऑफ केसेस, एंड क्राइटेरिया 3 में वही केसेस सिलेक्ट हुए हैं जिन पे सिर्फ एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी फॉर्म्स थी। सर ये बात तो आपकी ठीक है जी। तो उसके कारण हमारे लुधियाना में तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है कि ऑफिसर्स उस जिसमें सिर्फ पंजाब की डिमांड है और जिसमें मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी फॉर्म्स नहीं है, वो उसका ओटीएस फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सर वो लीगली बाउंड है ना सर, क्योंकि जो आपका क्लॉज 3 थी असेसमेंट ऑर्डर, वो 2/7/2015 समथिंग कुछ था। शायद 15/9/2021 की शायद वो लेटर है इनकी। हाँ जी है, बिल्कुल है सर। तो वो सर उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो वहीं से शुरू होती है। तो इसका मतलब तो फिर हम ये मान के चले ना, मतलब मेरे काफी एक दोस्तों की इट्सा में भी क्वेरी थी ये कि इसका मतलब हम ये मान के चलें कि एज फार एज इट्सा इज कंसर्न्ड वी कैन नॉट आल्सो टेक एनी मतलब मैटर टेक अप एनी मैटर विद डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट ठीक है अपनी जगह। डिपार्टमेंट ठीक है सर अपनी जगह पे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू पीयूष जी। ओके। अच्छा सर हम वापस आते हैं जी। ई इनवॉइसिंग पे हमने सप्लायर प्रोफाइल डाल दिया, हमने रेसिपिएंट मास्टर डाल दिया, प्रोडक्ट मास्टर पे आए। देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, चलिए कुछ भी डालते हैं। इन सर्विस नो, HSN कोड 6 डिजिट डाल दिया। बाकी कुछ भी मेरे लिए कंपलसरी नहीं है, ये चीजें कंपलसरी हैं, लेकिन ये रेट वगैरह अगर मैं डाल दूंगा तो मेरे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ऐड टू मास्टर,
ये हो गया सर। अब अगेन बैक टू मेन्यू। अब ये मेरा सारा मास्टर क्रिएट हो गया। अब मैं न्यू इनवॉइस पे जा रहा हूँ सर। कैटेगरी टू D2B है, SEZ में जा रहा है, एक्सपोर्ट है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट है, वो सारी डिटेल मुझे यहाँ से चूज करनी है। मैं सबसे पहले जा रहा हूँ B2B में। रिवर्स चार्ज, यस और नो? नो। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है सर? 3 चीजों पे मैंने बोला था कि एप्लीकेबल है। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। वी आर ट्रीटिंग इट टैक्स इनवॉइस। डॉक्यूमेंट नंबर जो मेरा इनवॉइस का नंबर है, सपोजिंगली मेरा 21/-008 है फॉर एग्जांपल। डॉक्यूमेंट डेट, कौन सी डेट के डॉक्यूमेंट है, ये मुझे डेट डालनी है। आज की डेट ही ट्रीट कर लेते हैं। सर कैटेगरी में देखना एक्सपोर्ट आ रहा है। आ रहा है सर, डी एक्सपोर्ट आ रहा है सर। ये देखिए डी एक्सपोर्ट, डायरेक्ट ठीक एक्सपोर्ट। ठीक है। लीगल नेम जस्ट सर एक मिनट प्लीज, फिर से आना कैटेगरी में। आइए आ गया सर। ये एक्सपोर्ट WP और इन तीनों में क्या फर्क है नीचे? विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट सर। ये तीनों अच्छा एक्सपोर्ट है। डीम्ड एक्सपोर्ट है नीचे ये वाला, डीम्ड ठीक। एक्सपोर्ट है सर। मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट से, ठीक है सर। विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट। मतलब ये जो मैं विद पेमेंट कर रहा हूँ, ये जो मैं LUT के अगेंस्ट कर रहा ठीक हूँ, है सर, और ये जो मेरा डीम्ड एक्सपोर्ट है। ठीक है। लीगल नेम, फील्ड टू डिटेल्स। अब हमने वहां पे नाम डाला था, देखिए वो नाम बाय डिफॉल्ट आएगा। जो हमारे मास्टर में वही आएगा, बाकी नहीं आएगा। मास्टर में पहले ये लीगल नेम डालना कंपलसरी है, बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली पंच होगी। ये क्लियर है सर? अब मुझे इस पे IGST एप्लीकेबिलिटी है, यस और नो? मैं इसको नो लेके चल रहा हूँ। ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर है, बिल टू शिप टू है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है, कॉम्बिनेशन है। मतलब ये सारी चीजें जो हमारी ई-वे बिल पोर्टल पे डिटेल्स आती थी, वो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमने रेगुलर कैटेगरी ले ली, ठीक है जी। अब हम आते हैं आइटम डिटेल से। आइटम सीरियल नंबर 1, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, यूनिट, यूनिट प्राइस, इन सर्विस, नो। ये सारी डिटेल हमें फिल करनी है। क्वांटिटी 100 पीस, यूनिट प्राइस 10 रुपए, फ्री क्वांटिटी, आर यू गिविंग एनीथिंग फ्री, वो भी यहाँ पे मेंशन करनी है, कंपलसरी नहीं है। डिस्काउंट अगर कोई है वो भी, GST रेट, अगर हमने वहां पे GST रेट डाला होता तो वो आ जाता। हमने 12% ट्रीट कर लिया। SGST वैल्यू, CGST वैल्यू सब आ गया। सबमिट, ये आ गया। ये देखिए ई-वे बिल डिटेल, यहीं से ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। ये ई इनवॉइस का मेरा प्रीव्यू आ गया। B2B कैटेगरी है, डॉक्यूमेंट नंबर ये है, टैक्स इनवॉइस है, सेलर की डिटेल, बायर की डिटेल, कौन सा प्रोडक्ट है, ये सारी आ गई। वंस आई एम सेइंग कंफर्म, डू यू वांट टू डू गो टू इनवॉइस, कंटिन्यू एंट्री, गो टू मेन्यू। आप यहां से गो टू इनवॉइस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली पोर्टल पे लिंक कर देगा। ये हमारा टोटल ई इनवॉइस का जो डिपार्टमेंटल सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पे करने पे ये देखिए, अगर मैंने गो टू ई इनवॉइस किया था तो ये आ गया। अब यहाँ से जेसन फाइल क्रिएट करूंगा और वहां पे अपलोड करूंगा। लेकिन ये सारा करना मीन्स डबल लेबर। पहले मैंने बिल बनाया, फिर वो सारा बिल यहाँ पे कॉपी किया। इंस्टेड इट इज ऑलवेज बेटर कि सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्ट जेसन फाइल क्रिएट होके अपलोड हो जाएगी पोर्टल पे। लेकिन स्टिल दिस फैसिलिटी इज देयर। तो हमने ये एक
ड्राफ्ट बना लिया कि कैसे होती है। वी आर बैक ऑन अवर नाउ ई इनवॉइस। ई इनवॉइसिंग की यही टोटल डिटेल है, इसके अलावा ई इनवॉइसिंग में कुछ नहीं है। इस पे अगर अपनी कोई क्वेरी है, क्योंकि ई इनवॉइसिंग हमें जनरेट करनी है, कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है, वी हैव डिस्कस दैट, और कैसे जनरेट करनी है, वी हैव सीन दैट प्रैक्टिकली। रजिस्ट्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसके अलावा अगर ई इनवॉइसिंग में आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए। जनरली जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उन्होंने ये सारा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर। जैसे टैली हो गया या और बीसी सर हो गया। टैली पे आज ही चेक किया है, F11 प्रेस करके आपकी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल की प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद आगे क्या है, वहां पे ई इनवॉइसिंग यस और नो की आ जाती है डिटेल। तो वो आप एक बार एप्लीकेबल करके आप उसके थ्रू कर सकते हैं आराम। तो यहाँ पे ये इंटरफेस नहीं है तो हमें ये इनवॉइस के थ्रू जो आपने बना के ये दिया वाला है टूल उसके जो थ्रू डिपार्टमेंट का टूल है हेल्प में, ये जो ई इनवॉइस का पोर्टल है, इस पे हेल्प के नीचे ये हेल्प पे भी डाउनलोड करना अपने आप में एक प्रोसेस है। ये पहले आपका जीएसटीएन नंबर या आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल मांगता है। मैं वहां पे दो कैटेगरी आती है, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। क्योंकि जहाँ पे सॉफ्टवेयर ये इंटरफेस नहीं दे रहे हैं तो इनिशियली 2-4 दिन के लिए इस टूल के थ्रू इनवॉइसिंग हो सकती है ताकि क्लाइंट्स का काम ना रुके। ये लाइव पोर्टल है, आप विजिबल है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए हेल्प, हेल्प के नीचे टूल, बल्क जनरेशन टूल। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये निकलता है। मैं इसको डाउनलोड पे प्रेस करता हूं, ये डिटेल आ गई सर। या तो आप टैक्स पेयर की डिटेल दीजिए या टैक्स प्रोफेशनल की दीजिए या अदर। टैक्स पेयर की डिटेल देनी है, जीएसटीएन नंबर, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। टैक्स प्रोफेशनल की डिटेल देते हैं तो नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी, फिर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। अदर की देते हैं तो सेम। ये सबमिट करने के बाद तब आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं डाउनलोड कर सकते। और ये रजिस्ट्रेशन है, पोर्टल लॉगिन, ई इनवॉइस एनेबलमेंट। कोई भी जीएसटीएन नंबर यहाँ पे हम डालेंगे, ये डिटेल आ गई सर। आई एग्री पे करके सेंड ओटीपी करूंगा तो मेरी ई इनवॉइस एनेबलमेंट हो जाएगी। एनेबलमेंट होने के बाद पोर्टल लॉगिन शुरू होता है। पोर्टल लॉगिन, सॉरी यू आर नॉट एनेबल्ड फॉर ई इनवॉइसिंग सिस्टम। क्योंकि आप एनेबल्ड नहीं हो इसलिए आप इसमें आगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे जा नहीं सकते। मतलब अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है, ये देखिए साइट पे लिखा हुआ आ रहा है बड़ा क्लियर, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर टैक्स पेयर विद टर्नओवर 20 to 50 करोड़ इज एनेबल्ड। ये ऑलरेडी एनेबल्ड है। और इस पोर्टल पे एफएस सैंडबॉक्स पे आपकी अभी से ई इनवॉइसिंग शुरू हो चुकी है। ये एक बीटा वर्जन है, यहाँ पे आपकी ई इनवॉइसिंग शुरू हो चुकी है। आप ट्रायल करना चाहते हैं कि क्लाइंट देखना चाहता है अभी करके देख लूँ, लिंकिंग करके देख लूँ, सारा करके देख लूँ ई इनवॉइसिंग होती है कि नहीं होती, तो वो यहाँ से अभी भी कर सकते हैं। अभी मैं एक क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन करा रहा था तो उनका फोन आया, कहता है सर आज रजिस्ट्रेशन कराने से आज ही तो नहीं शुरू हो जाएगी, ये बाकी 15 दिन की ई इनवॉइसिंग कंपल्सरी हो जाएगी। नहीं, दिस इज जस्ट अ ट्रायल। ई इनवॉइसिंग लीगली आपके ऊपर बाउंड 1 अप्रैल से ही है, तो आप ट्रायल मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। ये सब टोटल है ई इनवॉइसिंग। एनीथिंग फ्रॉम मेंबर साइड नाउ? फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर सर।
मतलब एक बार सभी मेंबर्स को अनम्यूट करने की पावर दे दो, जिस मेंबर को क्वेरी है वो अपने आप को अनम्यूट कर सके। साहिल जी, एक ग्रुप में क्वेरी आई थी विपत जी की, आई थिंक उसमें 2-3 पॉइंट कवर हो गए। सर वो जो नहीं इनिशियल कवर में हुआ वो प्लीज। स्टार्टिंग में कवर हो गए हैं, वो एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है उसी में कवर हो गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इनका ना। 4th पॉइंट है वो थोड़ा सा सर मैं एक बार सर पूछ लेता हूँ दोबारा से सर। Fourth वैसे point है। कि जो क्वेरी आई थी सर, एक विपिन चोपड़ा जी की अपनी क्वेरी आई थी पीयूष जी, तो उसमें 4 पॉइंट्स थे, जिसमें से पहले 3 पॉइंट्स तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में कवर हो गए। मैं एक बार सारे पॉइंट्स टेकअप कर लेता हूँ, अगर आपको लगेगा किसी पे आंसर देना है तो आप प्लीज उसमें कीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ फॉर ई इनवॉइसिंग, टर्नओवर ऑफ 20 crore whether to consider including GST or without GST. Without GST, sir. In case total turnover is 22 crore and credit notes 3 crore, which means net turnover rupees 19 crore. Now whether e-invoicing is applicable or not. सर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है सर, नेक्स्ट लेके चलते हैं हम। Yes, sir. In case sale is in excess of 20 crores and is entirely tax-free items, exempted items, now whether e-invoicing applicable? यस सर। सर इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, एप्लीकेबल होगी बट सिर्फ और सिर्फ B2B सप्लाईज के लिए होगी। सिर्फ B2B सर, सर ई इनवॉइसिंग है ही सिर्फ B2B के लिए। अगर मेरी टर्नओवर 500 करोड़ भी है और मेरी टोटल सेल B2C है, मेरे ई इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन करानी है मुझे, इनवॉइस कोई भी ई इनवॉइस नहीं होगी। और एग्जम्प्टेड सप्लाई सर हम करते ही सिर्फ मींस एग्जम्प्टेड सप्लाई अगर वो B2B भी है उसको दिखाना तो हमें मींस एग्जम्प्टेड में कैटेगरी में है, तो इनवॉइसिंग नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। सर ये एग्जम्प्टेड सप्लाई के ऊपर मैं टैक्स इनवॉइस बनाता ही नहीं हूं ना नॉर्मली। जी सर। तो मेरी टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे ही लगना है। Fourth last point is sir, whether e-invoice applicable for rebate entries, whether no GST is involved. Whether e-invoice is Where applicable? no GST is involved. सर बिल्कुल है जी, वो अपना क्लियर आ गया सर। सर क्रेडिट डेबिट नोट्स का कंसेप्ट हो गया रिबेट्स के ऊपर भी। बिल्कुल रिबेट का। तो ये सभी क्वेरीज का आंसर पहले हो चुका था एक बार। फोर्थ क्वेरी में लगेगा ई इनवॉइस। सर ई इनवॉइस 3 चीजों पे लगनी है जी, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस पे, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। अगर मेरी रिबेट है, अगर तो देखिए मेरा फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है तो मेरा कोई ई इनवॉइसिंग का मामला नहीं है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के थ्रू गुड्स की ट्रांसफर हो रही है या मेरी कोई चालान के साथ हो रहा है तो उस पे आएगा सर, अदरवाइज नहीं आएगा। इनका पूछने का मतलब ये था कि जो हम राइट ऑफ करने के लिए छोटे मोटे रिबेट फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे नहीं आता। हाँ, उस पे नहीं आएगा। सुमेश भैया कुछ कहना चाहते हैं सर? सुमेश जी अनम्यूट कर ले अपने आप को। सर जी, गुड टू सी यू बैक सर अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक क्वेश्चन है बट थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है सर। कैन आई आस्क एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम ई-इनवॉइसिंग सिंस यू आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड यू आर विद अस? कैन आई हैव द लिबर्टी ऑफ आस्किंग यू वन ट्राई क्वेश्चन? करके देखता हूं सर, आप पूछिए, कुछ ना कुछ नॉलेज शेयरिंग तो होगी। हाँ जी सर। मेरी पड़ जाएगी। हाँ जी। नहीं सर, ऐसा था कि मेरे पास ना जैसे ना एक यूनिट है विच उनकी होम स्टेट में सर दे हैव अ लॉट ऑफ आईटीसी ओवर देयर which is not being utilized, and they have a branch also for which there is an output tax liability. Sir, can this be in any manner the ITC from home state be utilized for the other state? Is it possible, sir? सर अभी ये क्लैरिफिकेशन आई तो थी ऐसी कुछ कैश के लिए सर। कैश क्रेडिट लेजर्स के लिए है कि अगर आपका कोई कैश लेजर का बैलेंस है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्रेडिट आईएसटी के कॉन्सेप्ट से अगर एप्लीकेबल हो रहा है आईएसटी का कॉन्सेप्ट तभी यूज हो सकता है। सर हेड ऑफिस ब्रांच का कंसेप्ट अगर हो तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। एनी अदर सर्विसेज के नहीं सर, केस में इसमें मतलब अपना अगर नहीं है फिर हम यूज नहीं कर सकते सर। अगर आईटीसी मेरा बैलेंस एक्सेस पड़ा हुआ है, नहीं ब्रांच होम मतलब उसका हेड ऑफिस और ब्रांच का ही है। अगर हेड ऑफिस और ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट है तो हम यूज कर सकते हैं सर। सर पर सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं होना चाहिए उसमें सर? कोई नंबर ऐसा नहीं होता उसमें कुछ? सर आईएसडी का प्रोविजन तो अगर आपके पास है ही है तो फिर तो आईएसडी के थ्रू तो आप कर ही लोगे, लेकिन आईएसडी तो वहां पे चलेगा ना सर जहां पे कॉमन चीजें हैं। हर चीज के लिए आईएसडी नहीं ना अप्लाई कर सकता मैं। सर फिर ट्रांसफर होगा कैसे सर? सर
नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। अब ब्रांच और हेड ऑफिस के केस में आईएसटी के अलावा जो भी यहाँ से आप सर्विसेज अगर कुछ यहाँ पे वर्किंग हो रही है, जहाँ पे इनपुट काफी पड़ा है, वहां पे अगर कोई आपका काम वहां से आप ब्रांच के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी आप बिलिंग कर सकते हैं वहां पे। तो उस सिनेरियो में कुछ सोच सकते हैं तो आप उधर एक बार प्लानिंग कर सकते हैं, दैट इज वैलिड। वो तो यहाँ मेरे पर माइंड में चल रहा था कि ऐसे करेंगे, बट यहाँ पे issue सर्विसेज की बिलिंग हो होगा सकती है, पर गुड्स वगैरह की बिलिंग अगेन वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी हमें कि हाँ वो फिर ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा कुछ और इवन होगा। की आपका point एडवांस understand रूलिंग कर रहा है, हूँ हाई साहिल जी, कोर्ट मैं वो- जजमेंट भी है, सरकार की एडवांस रूलिंग और हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इसको ट्रांसफर करना चाहिए, डायरेक्टर्स की जो सैलरी का पोर्शन है या अदरवाइज कैलकुलेशंस करके ट्रांसफर करना, मींस बिलिंग होनी चाहिए, नॉट ऑन ट्रांसफर। अगर वहां पे आईटीसी नहीं दिया तब भी बिलिंग होनी चाहिए। सर, पर वो बिलिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा टिकलिश रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बिल भी बनेगा, गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट, सर्विसेज की तो चलो खैर पता नहीं लगता, गुड्स की मूवमेंट होनी चाहिए। तो सर्विसेज की केस की बात कर रहे हैं, मैं सर्विसेज कह रहा हूँ। अगर मतलब मैनेज कर सकते हैं तो कर सर सकते जो हैं। डायरेक्टर्स ने यहाँ बैठ के जो डिसीजन मेकिंग की ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच, जो यहाँ पे अकाउंटिंग हुई या अदर अलाइड सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड की गई, कॉलिंग की सर्विसेज, मार्केटिंग की सर्विसेज, तो उन सब का कुछ प्रोपोर्शन उनकी सैलरी प्लस उसका एड ऑन जो जीपी है वो एड ऑन करके हम बिलिंग कर सकते हैं। वो कंसेप्ट आप अगर लगा सकते हो, इस कारण वो एक वैलिड रहेगा। अदरवाइज गुड्स के लिए तो आपको मींस प्रॉपर गुड सप्लाई करना पड़ेगा। सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन वाला आ जाएगा, इसमें वैल्यूएशन रूल्स का ध्यान रखना सर, 8% मिनिमम ऐड अप करके जी चलना। सर, तब मैंने जीपी की बात की, जीपी एड ऑन करना ही पड़ेगा। वो मतलब ऐड करके चलना, इतना डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कॉन्सेप्ट में वैल्यूएशन रूल्स ध्यान में रख के चलना सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, और थैंक आईएसडी यू सो तो मच फिर सर। इशू आएगा। एनी सर, अदर किसी और सर member मेरी की एक क्वेरी है ई इनवॉइसिंग को रिलेशन में। राहुल गुप्ता जी की क्वेरी है। सर ये है कि हमारे ना कोई मेडिसिन के होलसेलर्स हैं, तो उनमें क्या दिक्कत आती है कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला बंदा आता है, वो कहता है कि हमें मेडिसिन दे दो, आप मेरा एआरएन के नंबर पे बिल काट दो। तो अब ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर के कारण, तो उस केस में हम कैसे करें? सर ई इनवॉइसिंग होनी है B2B पे, जितनी देर को उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है बंदे की, अभी एआरएन ही जनरेट हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन कल को रिजेक्ट भी हो सकती है, ये कोई गारंटेड तो है नहीं कि एआरएन ऑब्वियसली कोई इनवॉइस इशू ही नहीं होगी, दैट मींस वो B2C में चला गया। अगर वो फिर बाद में हमें कहते हैं कि हमारी रेक्टिफाई कर दो ये नंबर, वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। दूसरी इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा। सर इसमें जो एक कंसेप्ट है कि जब जैसे आप एआरएन आया हुआ है, एआरएन के बीच में B2C सप्लाई करते हैं, बाद में अमेंडेड जो इनवॉइस करूंगा मैं, अगर उसको क्योंकि सामने वाले को इनपुट भी लेना है, तो रिवाइज इनवॉइसेस हो जाएंगे मेरी तरफ से। सर वो जो रिवाइज इनवॉइस जाएगी ना सर, उसकी ई इनवॉइसिंग नहीं हो पाएगी। तो अगर मैं उसके लिए भी इनवॉइस कर दूं, रिवाइज इनवॉइस के अगेंस्ट ई इनवॉइस इशू कर दूं, कहीं पे कुछ गलती है सर उसमें इशू ये आ जाएगा, अब मेरी ई इनवॉइस हो गई, एक मेरी B2C टर्नओवर हो गई, जी सर, सेम इनवॉइस जो मेरी B2C में जा चुकी है सर, बट जीएसटीआर 1 को मैं अमेंड कर सकता हूं ना वहां पे? सर कर सकता हूं, रेक्टिफिकेशन में मेरी जो ई इनवॉइसिंग की कंप्लायंस है वो फुलफिल हो जाएगी, और जीएसटीआर 1 में रेक्टिफाई होने से मेरी जीएसटीआर 1 करेक्ट हो जाएगी। इसमें वही वाला इशू आ रहा है जो हमने एक्सपोर्ट में डिस्कस किया था कि ई इनवॉइसिंग की कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम बाद में ई इनवॉइसिंग जनरेट कर देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि डिपार्टमेंट उस पर हमें डिस्प्यूट क्रिएट करेगा और हमारे लिए पेनल्टी प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है कि आपकी इनवॉइसिंग साथ में होनी चाहिए थी गुड्स रिमूव होते टाइम पे। प्रिवेंटिव बहुत उस केस में सर डॉक्यूमेंटेशन मेरी बेनिफिशियल रहेगी, सामने वाले से क्या डॉक्यूमेंट्स लेके रखता हूं मैं कि उसके लिए अमेंडेड इनवॉइस कर रहा हूं, अमेंडेड इनवॉइस के कारण इनवॉइस इशू की है, रिवाइज इनवॉइस के, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन मुझे फेवर देंगे बस। सर फिर वो तो ये है ना कि इतने मामले के लिए हम लिटिगेशन में जाने के लिए तैयार हैं। That's the point. Any other query, sir? किसी और मेंबर की क्वेरी? मेंबर्स कोई क्वेरी है तो पूछो प्लीज। किसी की भी क्वेरी है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है।
मैं हमेशा कहता हूँ सर, जब क्वेरी नहीं होती तो दो ही चीजें होती हैं, या तो ऑल क्लियर की सब कुछ समझ आ गया, या ऑल क्लियर ऊपर से निकल गया, कुछ नहीं समझ आया। सर इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपकी डेलिब्रेशन है ना, उसमें ये नहीं लगता कि सामने वाले को समझ ना आया हो। जो सिंपल लैंग्वेज में आप समझाते हो उस हिसाब से सही सबको क्लियर हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस पेशेंस से सर आपने इनवॉइस तैयार किया है पीयूष जी। वो काफी काबिल तारीफ है, बड़े पेशेंस से आपने पूरा इनवॉइस बना के दिया। ये सर पर्पस सॉल्व होना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। Over to you, Sahil ji. And Yes, sir. once again, thank you very much, Sameer ji. Thank you very much ji, and thanks to all the members of ITCA कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और मुझे 1.25 घंटे के लिए झेला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए भी सर, वैसे कहना नहीं है मींस, बट फिर भी फॉर्मली एक बार है, आपकी जो डेलीब्रेशन है सर बहुत बढ़िया रही। मींस जो जितनी नॉलेज में आप पर्संस को देखे जाते हो ना, मैं वो याद रहती है कि हाँ ये चीजें। अब जैसे ओटीएस 1 की बात करें तो ओटीएस 1 में भी मींस आपने जो चीजें बताई थी, कितनी क्वेरीज थी मेंबर्स की जो ऑन द स्पॉट आपने रिजॉल्व कर दी। और वो सिनेरियो ऐसा था कि ओटीएस 1 काफी लगने वाले पेंडिंग थे, तो धड़ाधड़ डिपार्टमेंट में भी ओटीएस उसके बाद लगने शुरू हुए हमारे इंतजार। तो मींस फॉर द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स मैं वर्धमान जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा। वर्धमान जी। Thank you, Sahil ji. I CA Vardhaman Jain, Vice President of ITCA. On behalf of ITCA Parivar, thank today's our speaker, CA Piyush Bansal ji, this seminar on OTS in VAT and new invoice provisions. It was really very interactive and outstanding session, Piyush ji. We are thankful to members of ITCA Parivar also who have joined the webinar in a very good number. We are very much encouraged with your response, and we assure all members that we will try to resolve all the problems of the members and stand to their expectations. Thank you. Thank you. धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। Thank you members for joining today's webinar. सर आज जी कोई मेंबर्स को कोई और कुछ कहना चाह रहे हो आज के टॉपिक के अलावा, प्लीज। हाँ जी प्लीज अनम्यूट अवनीत जी। हाँ जी अवनीत जी। Good evening ITCA team and also ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਊਸ਼ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਪੀਐਸਡੀਟੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਆਈਟੀਸੀਏ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਪੀਐਸਡੀਟੀ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫॉर ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਧੜਾਧੜ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਸਰ ਫॉर ਨਾਈਸ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ, always the charm to listen you. Thank you Amit, thank you। ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਓਡੀਐਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੇ ਪੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सर ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। मैं सर एक चीज हो रहा है, मैं डीटीजे टीम का भी शुक्रिया करना चाहूंगा। आज का जो अपना ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇੰਟਲੀ। ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਾ ਡੀਟੀਜੇ ਟੀਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। I am also thankful to the whole ITCA team for this successful webinar. अभिनव जी ने सारा मोर्चा संभाला हुआ था, तो I am also thankful to my team. Thank you sir, thank you members. सर एक चीज कहना चाहना चाहिए थे। हाँ जी सर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स, ये जो आज ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ we will be uploading the same on YouTube, so anybody can refer and ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, so we have this webinar recorded for reference purposes. Thank you sir. Thank you sir, thank you sir, thank you ji, thank you very much sir, thank you। okay sir, okay, thanks to all, thank you so much members. Thank you, that's all with the session. Thanks Piyush ji। thank you sir, okay जी।